In the last lecture, we have discussed convergence of Cauchy sequences in norm-linear spaces. We have also shown that norm is a continuous mapping on norm-linear spaces. Today, we will continue the topic norm-linear spaces and Banach spaces. First, we shall prove a corollary which states that in any nonlinear space, the operations of vector addition and scalar multiplication are jointly continuous. As we know that any nonlinear space is a metric space, and in any metric space, continuity and sequential continuity are equivalent. So, here we shall show that operations of vector addition and scalar multiplication are jointly sequentially continuous. Let us prove this. Let X be a nonlinear space over field K, where K is either field of complex numbers or field of real numbers. We have to show that mapping vector addition from X cross X to X is jointly continuous. So, we take two sequences, let xn and yn be two sequences in X such that xn converges to X and yn converges to Y. Then to show that vector addition is jointly continuous, we have to show that the sequence xn plus yn converges to X plus Y. So, we consider norm of xn plus yn minus X plus Y. But this can be written as norm of xn minus x plus yn minus y. And by triangle inequality, this is less than or equal to norm of xn minus x plus norm of yn minus y. And since xn converges to x and yn converges to y, so as n tending to infinity, this right hand side converges to 0. And so left hand side will converge to 0 as n tending to infinity. Hence, limit of sequence xn plus yn is equal to x plus y. So, we can say that vector addition is jointly continuous. Next, we show that scalar multiplication from k cross x to x is also jointly continuous. So, we take a sequence of scalars alpha n and suppose this sequence converges to alpha. Then we want to show that sequence alpha and xn converges to alpha x. So, we consider norm of alpha and xn minus alpha x. If we add and subtract alpha and x, then we have norm of alpha and xn minus alpha and x plus alpha and x minus alpha x. Then here we can take common alpha and here we can take common x. And by triangle inequality, we can write this is less than or equal to norm of alpha n xn minus x plus norm of alpha n minus alpha into x. And since here alpha n is a scalar and here alpha n minus alpha is a scalar, so by property of norm, we can write this is equal to mod of alpha n into norm of xn minus x plus mod of alpha n minus alpha into norm of x. Since sequence alpha n is a convergent sequence, so this is bounded also, and so this mod of alpha n will tend to a finite number as n tending to infinity. And here norm of x is also a finite real number, and as n tending to infinity, norm of xn minus x converges to 0 and mod of alpha n minus x converges to 0 as n tending to infinity. So, right hand side will tend to 0 as n tending to infinity, and so left hand side will tend to 0 as n tends to infinity. And so we can say that this
limit n tending to infinity alpha and xn is equal to alpha x. In this way, we have shown that scalar multiplication is jointly continuous. Now we have some definitions. The first definition is a linear space X on the field K equipped with the topology is called a topological vector space if the operations of vector addition and scalar multiplication are jointly continuous with respect to the given topology on X. And earlier we have shown that any any nonlinear space is a metric space, and every metric space is a topological space. So when we define nonlinear space, then we have a linear space equipped with a topology. And we have also shown that operations of vector addition and scalar multiplication on nonlinear spaces are jointly continuous. So we can say that here we note that every nonlinear space is a topological space. Now the second definition is, let X be a nonlinear space and Xk be a sequence in X. Then with the help of this sequence, we can construct a series summation xk k is equal to 1 to infinity. Then by taking n terms of the series for each n, we can define nth partial sum. Sn is equal to summation xk k is equal to 1 to n is called nth partial sum of this series. Here we note that S1 is equal to x1, S2 is equal to x1 plus x2 and so on. Sn is equal to x1 plus x2 up to xn, and this is for any n or any natural number. So we have defined a sequence also with the help of this series, and this sequence is called nth partial sequence is called sequence of partial sums of this series. Now we have the third definition as a sequence xk in a nonlinear space is called summable to sum S if the sequence Sn or partial sums of the series summation xk k is equal to 1 to infinity converges to S belongs to X, and we write S is equal to sum of this series. That means यहाँ पे आपने क्या किया है, आपके पास एक सीक्वेंस गिवन था, फिर उस गिवन सीक्वेंस की हेल्प से आपने सीरीज़ लिखा एंड इस सीरीज़ की हेल्प से आपने सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स बनाया. तो अगर ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स S पर कन्वर्ज करता है वेयर S बिलोंग्स टू X, तो हम लोग कहते हैं कि इस सीरीज़ का सम जो है वो S है, और हम लोग सीक्वेंस को कहते हैं कि ये सीक्वेंस जो है समेबल टू सम S है. और जैसा कि आपने रियल नंबर्स के सीक्वेंस में भी ये डिफ़ाइन किया होगा, वहाँ पे भी nth पार्शियल सम डिफ़ाइन करते थे, यहाँ पर भी आप जो है nth पार्शियल सम जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही. And now the fourth definition is a sequence xk in a nonlinear space X is said to be absolutely summable if summation norm of xk k is equal to 1 to infinity is less than infinity, means this is a finite number. तो अभी तक तो हम लोग सीक्वेंस की हेल्प से एक सीरीज़ बना रहे थे, लेकिन यहाँ पर सीक्वेंस की हेल्प से हमने सीरीज़ ऑफ रियल नंबर्स बनाया, क्योंकि हमने नॉर्म ऑफ एक्स के ले लिया, तो आप कह सकते हैं कि हमने एक सीरीज़ ऑफ रियल नंबर्स बनाए. एंड अगर ये जो सीरीज़ है, सीरीज़ रियल नंबर्स की है, इसका जो है इसका जो है इसमें भी आप nth पार्शियल सम डिफ़ाइन कर सकते हैं, और यहाँ पर भी आप सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स की कन्वर्जेंस देख सकते हैं. तो ये जो यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स है इस सीरीज़ का, वो अगर कन्वर्ज करता है तो आप कहते हैं कि जो है इस, क्योंकि जिस पर कन्वर्ज करेगा जिस रियल नंबर पे, तो इस सीरीज़ का सम वही होगा, और आप कह सकते हैं कि उस केस में हमारा जो सीक्वेंस है, जो ओरिजिनल सीक्वेंस गिवन है, वो कहलाएगा कि एब्सोल्युटली समेबल है.
Now we have a very important theorem which tells us a necessary and sufficient condition for a nonlinear space to be a Banach space. A nonlinear space X is a Banach space if and only if every absolutely summable sequence in X is summable. तो यहाँ पर आपको एक्चुअली पता है कि बानाक स्पेस किसे कहते हैं. अ कंप्लीट नॉर्म लीनियर स्पेस इज कॉल्ड अ बानाक स्पेस. इसका मतलब कि आपको यहाँ पे कंप्लीटनेस ही दिखानी है कि कोई भी नॉर्म लीनियर स्पेस जो है कंप्लीट होगा इफ एंड ओनली इफ every absolutely summable sequence in X is summable. Let us prove this theorem. Let X be a Banach space. तो हमें क्या दिखाना है कि कोई भी एब्सोल्युटली समेबल सीक्वेंस जो है वो समेबल होगा. तो आप एक सीक्वेंस ले रहे हैं समेशन एक्स, एक सीरीज आपने सीक्वेंस लिया एक्स के एंड जो कि आप ले रहे हैं कि एब्सोल्युटली समेबल है सीक्वेंस. और इसका मतलब क्या है कि जो हमें सीरीज ऑफ रियल नंबर्स इसकी हेल्प से मिल रही थी, समेशन नॉर्म ऑफ एक्स के इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, इस सीरीज का सम जो है वो एक फाइनाइट नंबर है. और ये आप कह सकते हैं इस सीरीज़ का सम फाइनाइट नंबर है. इसका मतलब इस सीरीज़ का जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स है वो जो सम है वो फाइनाइट नंबर है ये सम. तो thus the sequence S and dash of partial sums of this series is convergent and converges to this sum. So for given epsilon greater than 0, क्योंकि आपको पता है कि ये रियल नंबर्स का यहाँ पे सीक्वेंस है और ये कन्वर्जेंट है, तो कन्वर्जेंस जैसे आपने रियल सीक्वेंसेस की पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर एंड नॉट सच दैट मॉड ऑफ एस एन डैश माइनस summation norm of x k is equal to 1 to infinity is less than epsilon for all n greater than or equal to n naught. क्योंकि आप लोग को यहाँ पता है कि जो जिस पॉइंट पे कन्वर्ज करता है वो इस सीरीज़ का सम ही होता है, तो यहाँ पे हमने उसी सम को लिख दिया है. फिर क्योंकि ये जो है ये एक्सप्रेशन जो है n नॉट से स्टार्ट हो रहा है फॉर एनी n ग्रेटर देन और इक्वल टू n नॉट, तो इन पर्टिकुलर ये यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एस एन नॉट डैश. अब आप कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लेनी है और यहाँ जो सीरीज़ है सीरीज़ के सारे जो है वो नॉन नेगेटिव टर्म्स हैं, तो इस आप कह सकते हैं मॉड वैल्यू ली जाएगी. तो आपको ये एक्सप्रेशन इस तरह से दिखाई पड़ेगा समेशन नॉर्म ऑफ एक्स के वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी माइनस समेशन नॉर्म ऑफ एक्स के इज इक्वल टू 1 टू n नॉट. अब आप कह सकते हैं कि क्योंकि इस सीरीज़ के जो टर्म्स हैं इसी से आ रहे हैं, तो हम लोग यहाँ माइनस कर सकते हैं टर्म्स को क्योंकि सब रियल नंबर्स हैं. तो हमको जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो समेशन नॉर्म ऑफ एक्स के वेरीज फ्रॉम n नॉट प्लस 1 टू इन्फिनिटी एंड दिस इज लेस देन एप्सिलॉन. आप लेकिन हम लोग दिखाना क्या चाहते हैं, हम लोग दिखाना चाहते हैं कि जो सीक्वेंस है वो समेबल है. इसका मतलब कि इस सीक्वेंस का पार्शियल सम्स में हम लोग इंटरेस्टेड हैं. इस सीक्वेंस की वजह से जो हमको सीरीज़ मिलेगी उसके सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स को दिखाना है कि वो कन्वर्ज करेगा. तो हम लोग यहाँ पे इस सीक्वेंस का जो है इसकी हेल्प से जो है nth पार्शियल सम्स ले रहे हैं. लेट एस एन इज इक्वल टू समेशन एक्स के इज इक्वल टू 1 टू n be the nth partial sum of the series summation x k varies from 1 to infinity. Then for n greater than m, for m greater than n naught, we have norm of Sn minus Sm is equal to, क्योंकि यहाँ पे n टर्म्स हैं एंड n जो है ग्रेटर देन m लिखा गया है, तो आपको जो टर्म्स मिलेंगे वो कौन कौन से टर्म्स मिलेंगे, समेशन एक्स के इज इक्वल टू m प्लस 1 टू n, क्योंकि m तक के टर्म्स जो है वो रिमूव कर दिए गए हैं, तो m प्लस 1 से लेकर n तक के टर्म्स मिलेंगे. एंड आपको पता है क्योंकि यहाँ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो यहाँ पर हम लोग ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज़ कर सकते हैं. दिस इज लेस देन और इक्वल टू समेशन नॉर्म ऑफ एक्स के इज इक्वल टू m प्लस 1 टू n एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे n टर्म्स हैं, सपोज अगर हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स लेते हैं, इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स ले लेते हैं, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू समेशन नॉर्म ऑफ एक्स के वेरीज फ्रॉम m प्लस 1 टू इन्फिनिटी.
क्योंकि सारे टर्म्स जो हैं नॉन नेगेटिव हैं, तो आप बहुत सारे टर्म्स यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। फिर आप कह सकते हैं कि क्योंकि m जो है वो ग्रेटर देन n नॉट है, तो m+1 जो है वो भी ग्रेटर देन n नॉट प्लस 1 होगा, और हम यहाँ लिख सकते हैं दिस इज लेस देन और इक्वल टू समेशन नॉर्म ऑफ x k वेरीज फ्रॉम n नॉट प्लस 1 टू इन्फिनिटी, क्योंकि n नॉट प्लस 1 जो है वो लेस देन m+1 है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे इसलिए जो है ये हमने यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू लिखा है, क्योंकि सारे नॉन नेगेटिव टर्म्स हैं और कुछ हमने यहाँ ऐड किए हैं। एंड बाय यूजिंग 1 वी कैन राइट दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। इन दिस वे वी कैन से दैट Sn इज अ कोशी सीक्वेंस। ये सीक्वेंस जो है कोशी सीक्वेंस है x में, और चूंकि आपने लिया है कि x एक बानाक स्पेस है, मीन्स x जो है वो कंप्लीट है, और इसलिए कोई जो ये जो सीक्वेंस Sn है ये जो है वो कोशी सीक्वेंस है, इसलिए कन्वर्जेंट हो जाएगा, ये कन्वर्ज करेगा। सपोज ये सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज कर रहा है S पर, तो आप कह सकते हैं कि जो S जो है वो भी x का ही कोई एलिमेंट होगा, और हम लोग कह सकते हैं कि ये जो सीरीज़ है सीरीज़ x के समेशन x के k इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ये लेस देन इन्फिनिटी होगा, ये फाइनाइट नंबर है। और इस तरह से आप कह सकते हैं कि इस सीरीज़ का सम s है, और इस तरह से आप कह सकते हैं कि आपने जो है ये दिखा दिया कि जो सीक्वेंस है x के ये समेबल होगा, क्योंकि ये समेबल टू s होगा, क्योंकि इस सीरीज़ का सम जो है वो s है। Conversely, let each absolutely summable sequence in x is summable in x, we have to show that x is complete. So, let xn be a Cauchy sequence in x. Then we want to show that this Cauchy sequence is this sequence actually converges to some point of x. And then for each k belongs to n, the set of natural numbers, there exists nk a natural number such that norm of xn minus xm is strictly less than 1 by 2 to the power k for all n m greater than or equal to nk. यहाँ पर आप सोचेंगे कि हम लोग एप्सिलॉन जो लेते थे, तो एप्सिलॉन की जगह पे आपने यहाँ लिखा है k बिलोंग्स टू n, लेकिन एप्सिलॉन क्या है 1 by 2 to the power k, तो k की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हमें डिफरेंट यहाँ पे एप्सिलॉन मिल रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि एप्सिलॉन पर जो है नेचुरल नंबर डिपेंड करता है, तो जब हम लोग यहाँ पे आप 1/2 लेंगे तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि k की वैल्यू 1 है, यानी कि देयर एग्जिस्ट सम नेचुरल नंबर n1। जब आप k की वैल्यू 2 लेंगे तो 1/2 स्क्वायर मीन्स एप्सिलॉन की वैल्यू 1/2 स्क्वायर है, तो आपका यहाँ पे दूसरा नेचुरल नंबर मिलेगा। तो इस तरह से आपने कहा कि डिफरेंट एप्सिलॉन की वैल्यूज़ के लिए डिफरेंट हमें नेचुरल नंबर्स मिल रहे हैं। तो इसलिए आप कह सकते फॉर ईच k इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स देयर एग्जिस्ट nk नेचुरल नंबर सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, क्योंकि आपने केवल कोशी यहाँ पे कोशी सीक्वेंस की कंडीशन यूज़ किया है। अब आप जो है यहाँ पे जो nk's ले रहे हैं, तो आप इस तरह से चूज़ कर रहे हैं कि nk+1 जो है वो ग्रेटर देन nk हो जाए। एक तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि आपने एप्सिलॉन की वैल्यूज़ एक्चुअली छोटी करते जा रहे हैं, तो एप्सिलॉन की वैल्यू जैसे जो छोटी हो जाएगी तो कहीं ना कहीं हमारे nk's की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी। लेकिन हाँ, कहीं आपका इक्वल आ रहा हो तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से चूज़ कर रहे हैं कि जो nk+1 की वैल्यू है वो nk से लार्जर रहे, मीन्स ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स बन रहा है। और हम लोग जानते हैं कि अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स है तो उसकी हेल्प से हम एक सब सीक्वेंस डिफाइन कर सकते हैं। तो थस समेशन thus xnk इज़ अ सब सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस xn। नाउ हम लोग एक इसकी हेल्प से, इस सब सीक्वेंस की हेल्प से एक दूसरा सीक्वेंस डिफाइन कर रहे हैं। वी राइट y0 इज इक्वल टू xn1, y1 is equal to xn2 minus xn1 and y2 is equal to xn3 minus xn2। इस तरह से हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, और आप कह सकते हैं कोई भी जनरल टर्म लिख सकते हैं yk is equal to xnk+1 minus xnk।
और इस तरह से हमने ये जो y1 y2 है, इस तरह से हमने एक यहाँ पे सीक्वेंस बनाया है। और इस सीक्वेंस में हमने इस तरह से बनाया है कि इस सीक्वेंस का जो nth पार्शियल सम है वो जो है सब सीक्वेंस के टर्म्स में आए। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे अगर हम लोग इन टर्म्स को ऐड करें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि xn1 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, अगर ऐड करते जाएंगे xn2 इससे यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो हमको केवल मिल जाएगा xnk+1। तो हम लोग इस तरह से, आपने कह सकते हैं इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया है कि जो हमें यहाँ इस सीक्वेंस के जो nth पार्शियल सम मिल रहा है वो सब सीक्वेंस के टर्म्स में मिल रहा है। तो यहाँ पे nth पार्शियल सम आप कह सकते हैं xnk+1 मिल रहा है। एंड दूसरी चीज़ जो यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन को हम लोग देखें तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये m की जो वैल्यू है nk ली जा सकती है, क्योंकि m की वैल्यू nk से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे xnk लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि जो कि nk+1 जो है वो nk से लार्जर है, तो हम लोग यहाँ पे इस n की वैल्यू nk+1 भी ले सकते हैं, क्योंकि फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू nk, और इन पर्टिकुलर n की वैल्यू nk+1 ले सकते हैं। तो आप कह सकते हैं नॉर्म ऑफ xnk+1 माइनस xnk इज लेस देन 1/2 टू द पावर k। और अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ नोट करिए, ये देख सकते हैं कि xnk+1 माइनस xnk ये जो टर्म है इसका अगर नॉर्म लिया जाए तो नॉर्म ऑफ yk हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ देखते हैं कि ये सभी y1 तक के टर्म्स के लिए ये चीज़ होल्ड कर रही है। तो हम लोग से यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉर्म ऑफ xk इज लेस देन 1/2 टू द पावर k फॉर ऑल k ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। नाउ वी ऑब्जर्व दैट समेशन norm of yk, k varies from 0 to infinity, is equal to, this can be written as norm of y0, एक टर्म हमने अलग कर लिया एंड बाकी के टर्म्स अलग सम में लिख लिए हैं। और फिर आपने क्योंकि देखा कि जब k की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है यहाँ पर, तो जो है नॉर्म ऑफ yk जो है वो स्ट्रिक्टली लेस देन 1/2 टू द पावर k है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ जो हर टर्म है वो 1/2 टू द पावर k से जो है छोटा होता जाएगा। तो आप छोटा होगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ y0 प्लस समेशन 1/2 टू द पावर k वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। और हम लोग ये जो सीरीज़ है ये आप देख सकते हैं एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है जिसका कि जो कॉमन रेशियो है वो 1/2 है। तो यहाँ पे इस सीरीज़ का सम हम निकाल सकते हैं 1/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो दैट इज़ 1/2, और इसको देख सकते हैं इसकी वैल्यू 1 है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इस सीरीज़ का जो सम है, जो हमने यहाँ सीरीज़ बनाई थी, इस सीरीज़ का सम जो है वो एक फाइनाइट नंबर आ रहा है, क्योंकि नॉर्म ऑफ y0 जो है ये भी फाइनाइट नंबर है और इस तरह से एक फाइनाइट नंबर है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो सीरीज़ है y के ये एब्सोल्युटली समेबल है, क्योंकि इस सीरीज़ की जो टर्म्स हैं उनका हमने उनके करस्पॉन्डिंग रियल नंबर्स लिया है और ये इसका सम जो है फाइनाइट आ रहा है। तो हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि सीक्वेंस y के इज़ एब्सोल्युटली समेबल। अब क्योंकि हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर चुके हैं कि जो हमारी हाइपोथेसिस है वो ये है कि जो कोई भी एब्सोल्युटली समेबल सीक्वेंस जो है वो समेबल होता है, तो y के समेबल हो गया। और अगर y के समेबल है तो आप कह सकते हैं कि जो इसके करस्पॉन्डिंग हमको सीरीज़ मिलेगी उसका सम जो है वो फाइनाइट मिलेगा, जो कि जो आप कह सकते हैं देयर एग्जिस्ट सम x इन कैपिटल X सच दैट समेशन yk k वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू x। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इस सीरीज़ का सम फाइनाइट है, इसका मतलब इसका जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स है वो x पर कन्वर्ज करेगा। इसका मतलब, और आपने यहाँ पे देखा था कि इस सीरीज़ का जो है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स जो है वो xn1 xn2 इस तरह से हैं। तो आप कह सकते हैं इसका मतलब कि xnk जो है, ये जो सीक्वेंस इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स है वो xnk है, जो कि x पर कन्वर्ज करेगा एज k टेंडिंग टू इन्फिनिटी। और इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है, हमने जो एक्चुअली गिवन सीक्वेंस xn का सब सीक्वेंस लिया था, ये जो है क्योंकि ये आपने देखा कि
इस कोशी सीक्वेंस का एक्शन जो हमारे कोशी सीक्वेंस था, इसका सब सीक्वेंस था और ये कन्वर्ज कर रहा है। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये भी दिखाया था कि अगर किसी कोशी सीक्वेंस का जो है कोशी सीक्वेंस का सब सीक्वेंस जिस पॉइंट पे कन्वर्ज करता है, कोशी सीक्वेंस पर भी उसी पर कन्वर्ज करता है। और इस तरह से हम लोग कह सकते हैं एक्स जो है वो एक्स पर कन्वर्ज करेगा एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। और हेंस आपको क्या मिल गया कि कोशी सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज कर रहा है, और इस तरह से आप कह सकते हैं एक्स इज कंप्लीट whereby X is a Banach space. We have note that as set of real numbers with mod is a non-linear space, and in this space every absolutely summable sequence in R is summable, क्योंकि आप वहाँ पे प्रूव करते हैं कि every absolutely convergent series is convergent। तो उसी से आप यहाँ कह सकते हैं कि ये रिज़ल्ट हमें मिल जाता है, और इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि R with mod is a Banach space. Thank you.